So, very good evening, friends. We are again meet here for the discussion of cellular injury. Let's discuss it about its mechanism. If you don't subscribe my page, then subscribe my page and click the bell icon to view my video regularly. Now let's discuss it about mechanism. So सेलुलर इंजरी की mechanisms है, जिसमें सबसे पहले आते हैं hypoxia. You all know about hypo means low and oxia means oxygen. It means low oxygen in blood. If there is low oxygen getting in blood, there are low oxygen in the organs also. Low oxygen in organ is known as ischemia. Now there are other also mechanisms. For example, physical trauma. For example, let's take about an accident. You can get accident in the car accident or etc. Normal cell injury, then chemical injury due to some toxic or harmful chemical like H2SO4, electrical injury, radiation injury, autoimmune injury, and due to some infection, the injury can occur. Now, see, this is our animal cell, right? So what is its normal function? There are mitochondria, there are nucleus, there are lysosomes, there are ribosomes, there are endoplasms, reticulum, that is soft endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, and there are cytoplasm, is the cell. Now, if respiration occurs and O2 comes, how this cell utilize the O2? Let's see it. Respiration through oxygen are get intake. This oxygen are combined with glucose and make ATP, CO2, H2SO4, and this CO2 are get released. This H2SO4 sorry my mistake. This O2 are utilized by body and this ATP are used for the energy purpose. Now ATP is AMP for energy. Now ATP is made by mitochondria. Mitochondria made ATP by using O2. What if the cell don't get O2? O2 will decrease, automatically ATP will decrease, and ultimately the hypoxia occurs. Now the changes, that is injury, hypoxia occurs, oxygen level decreases, then mitochondrial function decreases, and ultimately ATP will decrease. Now in the cell there are some channels and some pumps. Channels are used for any substance to go inside the cell. Channel कब यूज होती है? कोई सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर जाना है, राइट? कोई सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है तो उसके लिए चैनल यूज होती है. और पंप कब यूज होता है? उसको एग्जिट करना हो तो पंप एज ए एग्जिट के तरीके वो यूज़ करता है. सपोज यहाँ पे P10 नाम का सब्सटेंस इनसाइड है सबसे पहले यहाँ पे, और P100 बाहर है. वो आ तो इजीली जाएगा थ्रू चैनल, इजीली अंदर आ गया, 110 हो गया, बट वो बाहर इजीली नहीं जा पाएगा. उसको बाहर पंप से निकलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, राइट? तो नॉर्मली एनर्जी यूज़ करके बाहर जाता है. बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, अब जब ATP ही नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे? ड्यू टू लो ऑक्सीजन. कोई भी सब्सटेंस, मान लो सोडियम हो, कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर नहीं जा पाएगा. अब बाहर नहीं जा पाए तो क्या करेगा? वो अंदर ही अंदर डिपॉजिट करेगा, क्योंकि वही नया सब्सटेंस तो आ ही रहा है. साइमल्टेनियस उसको बाहर निकलना चाहिए पर वो बाहर नहीं निकल रहा. अब सोडियम, सपोज सोडियम है तो सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा. अब इसकी प्रॉपर्टी है, सोडियम अगर वाटर के साथ मिले
तो स्वेलिंग करता है, राइट। मतलब आप दिख रही है स्क्वायर यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, स्वेलिंग होने के बाद ये सर्कल फॉर्म में आ जाता है, सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाती है। सो अब ये तो सारी चीज़ें हमने देखी हाइपोक्सिया में। अब हाइपोक्सिया के अलावा कंडीशन सेम है, लो ऑक्सीजन, बट हाइपोक्सिया के अलावा क्या हो सकता है अगर ऑक्सीजन लो हो जाए तो, वो हम डिस्कस करते हैं। थ्रू रेस्पिरेशन ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, बट ये ग्लाइकोलाइसिस से जब क्रेब्स साइकिल होती है और ईटीसी होती है, ये दोनों एटीपी के लिए ज़रूरी है, राइट। उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, लो ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये दोनों प्रोसेस ही नहीं होगी। और जब ये नहीं होगा तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है अब ये देखते हैं। अगर यहाँ से ऑक्सीजन मिला तो ये क्रेब्स साइकिल करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लैक्टिक एसिड एसिडोसिस करेगा, मीन्स एसिडिक कंडीशन इन द न्यूक्लियस इन द सेल। एसिडोसिस के कारण से डीएनए है वो क्लम्पिंग शुरू कर देगा। क्लम्पिंग यानी एक जगह इकट्ठा हो जाना, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए सपोज हमारा, तो क्लम्प हो जाएगा। किसकी वजह से? एसिडिक कंडीशन, एसिडोसिस के वजह से। और ये क्यों हुई थी? लैक्टिक एसिड की वजह से। और लैक्टिक एसिड क्यों हुआ था? ड्यू टू लो ऑक्सीजन, राइट। आई होप दिस अंडरस्टैंड। नाउ द सेकंड मैकेनिज्म्स इज सोडियम एंड पोटेशियम पंप। अब क्या होगा कि इसकी वजह से कैल्शियम पंप है वो क्लोज हो जाएगा। अब कैल्शियम पंप क्लोज होने की वजह से कैल्शियम की एक्यूमुलेशन होगी, फ्री कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगा। फ्री कैल्शियम जब एक्यूमुलेट होगा इट्स पॉइजनस टू द सेल। कभी भी फ्री पॉइजनस सेल में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या होगा ये देखते हैं। अगर फ्री कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज है वो हमारे सेल की ये जो मेम्ब्रेन बाहर दिख रही है आपको, सेलुलर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा। बाद में एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। एंडोन्यूक्लियस डीएनए डाइजेस्ट कर देगा। और साथ में प्रोटीएज है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। साथ ही में वो लाइसोसोम एंजाइम को रिलीज़ करेगा। अब लाइसोसोम आपको पता है सुसाइडल बैग के फॉर्म में जाने जाते हैं। अब जैसे कि ये रिलीज़ होगा लाइसोसोम एक्टिवेट होंगे और लाइसोसोम ऑर्डर देगा, केमिकल रिलीज़ करेगा, जिससे पूरा सेल डेथ हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, एक बार पूरा देख लेते हैं वापस क्या होता है। हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन, ब्लड में होता है हाइपोक्सिया और कहीं होता है इश्चीमिया। उसके अलावा फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, इम्यून, ऑटोइम्यून और इन्फेक्शन। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, राइट। एटीपी को बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी बनाता है? यूजिंग ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एटीपी नहीं होगा, हाइपोक्सिया होगा उसकी वजह से, राइट। ये चैनल है, ये पंप है। हाँ, तो इजीली जा सकता है, अगर बाहर निकलने के लिए उसको एटीपी की ज़रूरत है। अब जब एटीपी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहे? ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, जिससे क्या होगा, ये सब डिपॉजिट सेल के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा, राइट। सोडियम वाटर के साथ मिलकर सेलुलर स्विलिंग करेगा ड्यू टू लो ऑक्सीजन। देन रेस्पिरेशन, ये तो सब दिस इज ऑल अबाउट हाइपोक्सिया, राइट। हाइपोक्सिया के अलावा और क्या क्या हो सकता है अगर ऑक्सीजन लेस हो तो, ये हम देखते हैं। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस बनता है, उससे क्रेब्स साइकिल और ईटीसी बनता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट अब ऑक्सीजन यहाँ से नहीं जा रहा, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस से लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड एसिडोसिस करेगा न्यूक्लियस में
जिसकी वजह से डीएनए क्लम्पिंग होगी, मतलब ऐसा डीएनए है और क्लम्प हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, राइट, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन। और सोडियम पोटेशियम पंप, अब ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो कैल्शियम पंप ओपन नहीं, इसलिए कैल्शियम पंप क्लोज्ड हो जाएगा। कैल्शियम पंप क्लोज्ड होगा तो फ्री कैल्शियम की एक्यूमुलेशन होगी, राइट। फ्री कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब फ्री कैल्शियम है वो पॉइजनस है, राइट, हमारी बॉडी के लिए। क्या करेगा, किस तरह से वो पॉइजनस हुआ, वो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जो मेम्ब्रेन हमने दिखाई थी सेल की, वो डाइजेस्ट कर देगा। एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, जो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेंगे। प्रोटीएज यानी कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। और लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगा। जैसे लाइसोसोम को पता चलेगा, लाइसोसोम एंजाइम एक इस तरह का सब्सटेंस होता है जिससे लाइसोसोम को एक तरह का सिग्नल मिलता है कि अब हमको ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उस लाइसोसोम एंजाइम की वजह से लाइसोसोम पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेलुलर इंजरी ड्यू टू लो ऑक्सीजन। In our next lecture, we will discuss about the reversible and irreversible both cell injury. Okay, thank you for watching. Please like, subscribe and share my video for your friends for that benefit in their exams. Thank you so much.